am explaining you the most prominent feature of National Education Policy 2020. It is curriculum and pedagogy in school. According to that, learning should be holistic, integrated, enjoyable and engaging. इसके अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 इयर्स आंगनवाड़ी और फिर प्री स्कूलिंग के साथ 12 इयर्स की स्कूल एजुकेशन होगी, जिसका स्ट्रक्चर 5+3+3+4 होगा. The curricular and pedagogical structure and the curricular framework for school education will be guided by a 5+3+3+4 design. It means that the learning of a child in pre-primary and primary stage should be holistic and integrated based learning. The child should enjoy the learning and learning also based on how to engage a child in learning through a creative learning. Now, dear parents, I am presenting you the new education policy on early childhood care and education. It is also known as the foundation of learning and it is the main stage of learning. Currently, children in the age group of 3 to 6 are not covered in the 10+2 structure. आज की एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चे जो 3 to 6 ईयर्स एज ग्रुप के हैं वो 10+2 के स्ट्रक्चर को प्रॉपरली कवर नहीं कर पा रहे हैं. सो फॉर दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिगिंस द न्यू स्ट्रक्चर. इन द न्यू 5+3+3+4 structure, a strong base of early childhood care and education from age 3 is included. But according to NEP 2020, it is on childhood care and education. इसमें बच्चों का लर्निंग प्रोसेस 3 इयर्स की एज से स्टार्ट होता है. इसका मेन एम होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट. दिस इज एम्ड एट प्रमोटिंग बेटर ओवरऑल लर्निंग डेवलपमेंट एंड वेलबींग. Over 85% of the child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6. ऐसा रिसर्च मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट मतलब मानसिक विकास प्रायर एज इट मीन 6 इयर्स तक हो जाता है. So according to this policy, it is important that a child needs an appreciative case and stimulation of the brain in the early years. ECCE means अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चों की अर्ली एजुकेशन फ्लेक्सिबल मल्टीफेसिटेटेड होनी चाहिए. इसी के साथ ही बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले बेस्ड मीन्स खेल खेल में सीखना, मल्टी लेवल एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग सीखना बहुत ज़रूरी है, जो इस नई शिक्षा नीति में मुख्य रूप से जोड़ा गया है. द नेक्स्ट मेन फीचर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज Importance of mother tongue. इस योजना के अनुसार बच्चों की बेसिक एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 2 तक उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए. इस बिंदु पर अधिक बल दिया गया है, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चों को दी जाती है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में त्रिभाषा सूत्र, जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी हम कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हिंदी, इंग्लिश, लोकल या रीजनल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी गई है, ताकि बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में प्राप्त करेगा, जिससे उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ अदर लैंग्वेजेस को सीखने की भी क्यूरियोसिटी होगी. ऐसा माना जाता है कि बच्चा मातृभाषा में सीखने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है. इसको ध्यान में रखते हुए ही नई शिक्षा नीति इट मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मातृभाषा पर अधिक जोर दिया गया है. Now, the next basic point of new education policy is holistic development. According to new education policy 2020, a child should need holistic development from his early age. Physical, motor, social, language development, emotional development, cognitive development, and many more. It includes the basic element. First, a child should need healthy and fit atmosphere. A child should be happy and confident and friendly to learn everything. According to this policy,
children can express their thoughts and understands what others say. Holistic development also includes that every child excited to learn new things and understand what they study and use in their daily lives. These all are the important aspects. Next, the new education policy important feature is learning should be based on reduced curricular content in each subject. The next basic point is to reduce curriculum content in each subject. इसी के अनुसार स्कूली शिक्षा विश्लेषणात्मक होनी चाहिए, जिसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड पर हम करेंगे. इट मीन्स आधारित पूछताछ, इंक्वायरी बेस्ड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. और इसी के कारण जो हमारा करिकुलम है वो रिड्यूस करके उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किया गया है, ताकि बच्चा उसको करके सीखेगा. सपोज दैट अगर वो डिस्कशन मेथड है तो वो अपने ही पीयर ग्रुप में, पीयर सर्कल में वो डिस्कस करेगा. व्हेन स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है. डिस्कवरी मेथड इट मीन्स खोजबीन करना, एनालिसिस बेस्ड, विश्लेषण आधारित व पूछताछ इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए. Our next main feature of NEP 2020 is to promote the experiential learning in children. So, what is experiential learning? Who is the proponent of this theory? And the stages of its cycle, possible methods to be used in experiential learning strategy. Experiential learning. Experiential learning means taking students beyond the classroom. means बच्चे क्या एक्सपीरियंस करते हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है. इसीलिए बच्चों को ओनली क्लासरूम में दी गई शिक्षा को ही हमें नहीं देखना है, बच्चे इसके अलावा एक्सपीरियंस करके क्या सीखते हैं, इसे ही हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य में प्राकृतिक रूप से सीखने की संभावना होती है. सो ह्यूमन बींग्स हैव अ नेचुरल पोटेंशियलिटी टू लर्न. एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अकॉर्डिंग बच्चा किसी भी चीज़ को स्वयं अनुभव करके सीखता है. इसीलिए जब बच्चा लर्निंग प्रोसेस में खुद को पूरी तरह से इन्वॉल्व करता है या उसका फुल पार्टिसिपेशन होता है, तो वो अपने आप से ही एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारी नई चीज़ों को सीखता है. साथ ही साथ बच्चे अपनी सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग के बारे में भी जानने लगते हैं. सो दीज आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. इसके अकॉर्डिंग एक और चीज़ है कि बच्चे जो इंडिपेंडेंटली, क्रिएटिवली और सेल्फ एक्सपीरियंस करके अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज और सेल्फ इवेल्यूएट कर सकते हैं, वो ओनली एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू ही कर सकते हैं. एनईपी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इन मेथड्स के थ्रू बताया गया है. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. फील्ड ट्रिप्स. इसके अकॉर्डिंग बच्चों को फील्ड ट्रिप करवा के हम बच्चों से एक्सपीरियंस कर सकते हैं बच्चे के उन्होंने क्या सीखा. नैरेटिव्स, वो खुद से बता सकते हैं. कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स. सो चिल्ड्रन कैन डू द एक्सपेरिमेंट्स, वो खुद एक्सपेरिमेंट्स करें और सीखे. सिमुलेशंस एंड गेम्स. सो थ्रू द सिमुलेशन एंड गेम्स दे ऑल्सो कैन एक्सपीरियंस एंड लर्न सो मैनी थिंग्स. स्टोरी टेलिंग, फोकस इमेजिंग and field observation. What they observe on going field trips, they can write and they can experience. Role playing. Obviously role playing is also a method of experiential learning. Model building and surveys. So वो सर्वे करके भी ये जान सकते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या सीखा. Multidisciplinary education. It means flexibility in subjects. The significant principle of multidisciplinary education that now students are free to pick subjects from either stream. It means broader choice of subjects. means अब students के पास में subject choice करने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा options है that might interest them and pursue them as major and minor course. It is also reflected in the integration of vocational activities, life skills, physical education and extracurricular activities within the pedagogy for the holistic development of the student's personality. means मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशंस के थ्रू बच्चे जो है अपने सब्जेक्ट्स में लाइफ स्किल्स, फिजिकल एजुकेशन को भी एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ में जोड़ सकते हैं, जो उनका सिर्फ ओनली उसी स्ट्रीम के प्रति इंटरेस्ट नहीं बढ़ाते हैं. इट ऑल्सो एनहेंस देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट.
So now students are free to choose their preferred options from a range of course offered, and coupled with the choice of determining the length of their course, and it makes the students the focal points of the revampment system of education. So this will also improve the critical thinking and creative thinking in स्टूडेंट्स. सो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का मेन एम यही है कि अब स्टूडेंट्स के पास में सब्जेक्ट चॉइस के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है. दे हैव द ब्रॉडर ऑप्शंस, और साथ ही साथ जब उनके पास में ऑप्शंस होंगे तो उनके अंदर एक इनिशिएटिव लर्निंग की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी. वो क्रिएटिवली सोच सकते हैं. अगर बच्चा साइंस के साथ में अपना कोई वोकेशनल सब्जेक्ट या लाइफ स्किल को ऐड करना चाहता है तो वो ऐड कर सकता है. अब उनके पास में सिर्फ ओनली सिलेक्टेड सब्जेक्ट चॉइस वाला ऑप्शन नहीं रहेगा. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज नो स्ट्रीम सिस्टम. एनईपी ने एक नया जो बहुत बड़ा स्टेप लिया है वो स्टूडेंट्स के लिए ये है नो स्ट्रीम सिस्टम. इट मीन्स नो बाउंडेशन ऑफ चूजिंग स्ट्रीम. अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट्स कैन चूज एनी सब्जेक्ट ऑफ हीज एंड हर इंटरेस्ट. मीन्स अब वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं और उसमें अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को ऐड भी कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल he or she can take a combination of accounts, history and physics. Means there is no barrier of स्ट्रीम चॉइसिंग. स्ट्रीम चॉइस को लेकर कोई बैरियर्स नहीं है. स्टूडेंट्स जो है अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. अगर उनका जो इंटरेस्ट है अकाउंट्स के साथ साथ हिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, इट मीन्स स्टूडेंट हैज़ इंटरेस्ट इन ऑल्सो अकाउंटेंसी, लिटरेचर, आर्ट्स और उसके साथ साथ साइंस, फिजिक्स, तो वो उनका एक कॉम्बिनेशन बनाकर अपने अकॉर्डिंग जो है हायर एजुकेशन में अपनी सब्जेक्ट चॉइस को रख सकते हैं. सो पहले जो स्ट्रीम सिस्टम था उसको एनईपी ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है. सो ये जो है सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फीचर है एनईपी 2020 का. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत. The NEP has taken an important step to enhance the importance of Sanskrit language. हम देख रहे हैं धीरे धीरे संस्कृत लैंग्वेज का एक जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है. संस्कृत को ओनली कुछ ही स्कूलिंग लेवल पर जाकर सीमित कर दिया गया, उसको मतलब ब्रॉड नहीं किया गया था. हम देखते जा रहे थे कि धीरे धीरे बच्चे दूसरी लैंग्वेज सीखने के प्रति तो आकर्षित हो रहे थे, लेकिन वो बच्चे जो संस्कृत सीखना चाहते थे तो उसके लिए स्कूल ने पहले की जो शिक्षा नीति थी उसमें स्कूल में कुछ क्लासेस थी जहाँ तक उन्हें सिर्फ संस्कृत सीखना है. बट एनईपी ने संस्कृत के इम्पोर्टेंस को बढ़ाकर बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है. नाउ संस्कृत विल बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल. मीन्स स्कूलिंग में हर लेवल पर जो है संस्कृत सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है. एंड ऑल्सो इन हायर एजुकेशन मीन्स हायर एजुकेशन सिस्टम में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा. हायर एजुकेशन एज एन इम्पोर्टेंट एनरिचिंग ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स. मीन्स हायर एजुकेशन में भी स्टूडेंट्स जो है संस्कृत सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं और संस्कृत को जो है ये बढ़ावा देने के लिए ही किया गया है. एनईपी का ये स्टेप जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो संस्कृत में इंटरेस्ट भी रखते हैं.